Welcome to my 7th English class. Today we will do chapter number 2, A Gift of Chappal. As you see, the topic or name of the chapter is very interesting, A Gift of Chappal. Let us see what is it about, what is that stands for the topic, A Gift of Chappal. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Ruku Mani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. Let us see what they are up to. A smiling Rakku Mani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny means thin. Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो यहाँ पर हमें अब कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया है कौन कौन है। मृदु है जो कहाँ रहती है, मद्रास, आजकल उसे चेन्नई कहते हैं। विथ हर ग्रैंडमदर, नाम क्या है उनका, तापी, और उनके तट्ठा मतलब उसके दादाजी, अपने दादी और दादू के साथ रहती है। एक दोपहर को उसकी ग्रैंडमदर ने, उसकी दादी माँ ने उसे कहा कि वो उसके बुआ के घर जाएंगे, जिसका नाम है रुक्कू मनी, तो उसके कजन्स के साथ मिलेगी। कौन है उसके कजन्स? 3 कजन्स हैं, लाली, रवि एंड मीना। तो जब मृदु उनके घर पहुंची तो उसके कजन रवि और मीना ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे खींचते हुए अंदर की तरफ ले गए। यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, घर के अंदर चप्पल को लेकर नहीं जाते या स्लीपर्स को लेकर नहीं जाते, तो मृदु उसे उतारने लगी। जब वो उतारने लगी तो उसने क्या देखा, वहां पर एक ग्रे कलर के स्लीपर्स पहले से ही रखे हुए हैं, जिसकी हालत बहुत खराब है। उस पर पाँव के पंजों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मृदु को इतना टाइम नहीं मिला कि वो ये सोचे ये चप्पल किसकी है। उसके कजन उसे खींचते हुए घर के बरामदे में या बैकवर्ड मतलब बाहर की तरफ आंगन में ले गए। वहां उसने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे, बिटरबेरी मतलब कि बेर के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा किटन किसको कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, वो एक कोकोनट हाफ शेल में नारियल के खोल में दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says party will leave for our Padu Mamma's house if she knows we have a cat. अब बच्चे क्या कहने लगे, रवि और मीना क्या कहने लगे कि हमने इस किटन को कहाँ से पाया, अपने गेट के बाहर सुबह देखा, जहाँ वो बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, तो वो वहाँ पर म्याऊ म्याऊ ही कर रही थी बेचारी। तो लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारी जो दादी माँ है, वो क्या कह रही है, अगर आपने इस बिल्ली को अपने घर में रखा तो मैं तुम्हारे मामा के घर चली जाऊंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. अब रवि क्या कह रहा है कि लोग हमेशा क्या कहते हैं कि हमें जानवरों के साथ दयालुता से या अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब हम उनसे प्यार करने लगते हैं या अपने घर ले आते हैं तब वो क्या कहते हैं, छी, आप कितनी गंदी चीज को घर में ले आए हो, इसे बाहर रखो। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Party saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw
her of the set. Then she wanted the tumbler back. Party, party, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then ran back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. अब क्या हुआ, रवि ने सारी चीज बताई उसे। रवि ने क्या कहा कि बड़े लोग कितने खराब होते हैं कि पहले तो वो कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हम उसे अपने घर ले आते हैं तब वो उसे कहते हैं कि इस गंदी चीज को घर से बाहर निकालो। इस बेचारे को मुझे दूध पिलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने प्लान्स लगाने पड़े। मैं जैसे ही दूध का ग्लास किचन से लेकर आ रहा था तो मुझे किसने देख लिया, दादी माँ ने देख लिया। दादी माँ को तमिल में पाटी कहते हैं। तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझसे 100 सवाल किए। उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा कि मुझे भूख है और आधे से ज़्यादा दूध मुझे पीना पड़ा। लेकिन वो वही खड़ी रही, किसके लिए, टम्बलर मतलब ग्लास के लिए खड़ी रही कि मुझे वो ग्लास वापस दे दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कष्ट मत करें, मैं इस ग्लास को खुद ही धो लूंगा। और फिर मैं भागकर आया हूँ और इस कोकोनट शेल में मैंने बाकी दूध डाला है और धोकर उसे वहाँ पर रखा है। और मेरे अब कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे इस महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन कौन है, द लिटिल किटन Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. अब ये नाम इसको बहुत अच्छा लगा, मृदु को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक सच्चा नाम था। जैसे इंसानों के नाम होते हैं, ऐसे किसी कुत्ते बिल्ली का नाम जैसे हम रख देते हैं, वैसे नाम नहीं था। Actually, his full name is Mahendra Varman Pallava Punnai, MP Punnai for short, if you like. He is fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब उसको जब उसने सुना कि मृदु ने उसके रखे नाम का प्रेस किया है तो वो और ज़्यादा चौड़ा हो गया और उसने कहा एक्चुअली में इसका नाम रखा है हमने महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्ने, MP पुन्ने। तो इतना बड़ा नाम उसका रख दिया और बोले ये बहुत अच्छी ब्रीड का कैट है। और इसका फर तो देखो जैसे कि शेर की दाढ़ी हो या शेर के बाल होते हैं। और तुम्हें पता है पुराने राजा पल्लवा राजा के एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह क्या था, ये ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने मृदु की तरफ उत्सुकता से देखा। मृदु गिगल्ड, थिंक I am joking? Well, just wait. I will show you sometime. It's clear you don't know a little thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Thathas, etc., etc. Fact is, Mahendra is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, and none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. अब रवि को अपने नॉलेज को दर्शाने का मौका मिल गया मृदु के सामने। तो उसने मृदु हंसने लगी तो उसने क्या कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ। और वो लगातार बोलता गया। यहाँ थका का मतलब क्या है, वो लगातार बिना रुके बोलता जा रहा है। और उसने महेंद्र वर्मन का सारा क्या दे दिया, हिस्ट्री दे दिया कि महाबलीपुरम में जो वहाँ पर शिल्प हुआ है, आर्किटेक्चर हो रखा है, वो सारा किसका है, पल्लवा किंग का है। और उसका क्लोज रिलेटिव कौन है, लायन है। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. और उसने और नॉलेज को बढ़ाते हुए ये कहा कि ये महाबलीपुरम में से जो उनके पूर्वज थे, उसका ऋषि कैट जो था ये उसके वंशज है या वंशधर है। और तुम्हें पता होगा कि इजिप्ट में
बिल्लियों को पूजा जाता था। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अब मीना एंड मृदु ने देखा कि देखो अपने आप बोलने में इसको कितना मजा आ रहा है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मतलब इसके साथ जो ये किटन है और इसके पुराने पूर्वजों के बारे में या ये कहाँ से आई है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, Bacchus. That's it. अब उसने और अपनी जानकारी उसमें ऐड की, क्या कहा? तुम्हें कुछ नहीं पता, ये कौन है? इजिप्शियन कैट की वंशज है और उसका नहीं, ये भगवान नहीं है, ये क्या है? देवी है और उसका नाम क्या है? Bacchus. Oh. Well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Punde here. He seemed very pleased with himself. अब उसने और जोड़ा कि उस इजिप्ट में जब कुछ हुआ होगा तो ये कैट गॉडेस जो है जहाज पर चढ़ गई और बहती हुई यहाँ पर आ गई और उसके हाथ में जो लकड़ी का टुकड़ा उसने पकड़ा हुआ था वो उसने महेंद्र के ऊपर लगाया और खुद ही खुश होने लग गया। Mahendra looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop, it was a screech from the window. What a weird sound! If Ritu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing out, and he bounced up and squirreled down towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. अब क्या हुआ? उसने रवि ने जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े से उसको छेड़ा, महेंद्र को वो छोटी बिल्ली जो उसने ऊपर देखा और एकदम से सतर्क हो गई, क्योंकि वो अभी क्या कर रही थी? अपने पंजों को नारियल के खोल से शार्प कर रही थी। जैसे ही उसे आवाज आई वो डर गई और मृदु भी डर गई और उसने एक जोर से छलांग लगाई किस पर? जो वहां पर कुछ लाल मिर्चियां सूखने के लिए डाली थी और वो उसके ऊपर गिरी और वो जोर से चिल्लाई, क्या? म्याऊ। The screeching went on and on. What's that noise? said मृदु। अब ये जो आवाज आ रही थी खरोंचने की वो लगातार आ रही थी, तो मृदु ने पूछा ये क्या है? That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। अब रवि ने क्या कहा? ये जो है लाली क्या कर रहा है? वायलिन सीख रहा है। मतलब ये इतनी बेसुरी आवाज जो आ रही थी वो किससे आ रही थी? वायलिन से आ रही। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time going completely off track. बोलते हैं वो कभी नहीं सीख सकती कि जो म्यूजिक टीचर है वो इतना अच्छे से जैसे ट्रेन स्मूथली जाती है वैसे सिखा रहे हैं, लेकिन लाली हमेशा ऑफ ट्रैक हो जाती है। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब रवि ने कहा कि लाली जो है वो वायलिन सीख रही है और उसे सिखाने म्यूजिक मास्टर घर पर आते हैं। तो ये सुनकर मृदु को हुआ कि मैं देखूं तो क्या हो रहा है, तो वो खिड़की पर चढ़ गई और अंदर झांक कर देखने लगी कि क्या हो रहा है। तो उसने देखा लाली है वो क्या लेकर बैठी है? वायलिन लेकर बैठी है और अपने वो स्ट्रिंग से उसे चला रही है और उसके सामने ही दीवार से टेक लगाकर म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं जो एक ओल्ड फैशन पर्सन है। कैसे पता लगा कि उनका आधा सर जो था गंजा था और पतले पतले बाल थे जिससे उन्होंने तेल लगाकर चोटी की हुई थी अपने कानों के पीछे। साथ ही साथ उन्होंने अपने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी और हाथों में हीरे की अंगूठी थी। जब वो उसे चलाते, वो स्ट्रिंग को चलाते तो ऊपर नीचे होते हुए वो चमकती थी और उनके बड़े से पैर जो है उनके वेस्टी मतलब लुंगी या धोती उनके उसमें से बाहर निकले आ रहे थे और वो अपने पैरों की थाप फर्श पर दे रहे थे। He played a few notes. Lali
stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge, brilliant hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब क्या देखा कि जो मास्टर थे वो बहुत अच्छे से बजा रहे थे, वायलिन बजा रहे थे, लेकिन लाली को उनके साथ कोऑप करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वायलिन जो है खुद को मजबूर और दुखी महसूस कर रही थी। किसके हाथों में? लाली के हाथों में। और कितना डिफरेंस था कि जो म्यूजिक मास्टर था उसके जो नोट्स थे या उसके जो रिदम थे वो बहुत ज़्यादा सुरीले थे। मेलोडीज मतलब सुरीला, बहुत सुरीले थे, जबकि लाली ऐसे लग रहा था जैसे कि वो डिरेल हो चुकी है, मतलब ट्रेन जो है पटरियों से उतर चुकी है। Sweat. There was Lali derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh! Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day from the past week and it's time he found another house to beg from. Party explained to Tapi. इतने में आवाज आई क्या कि अम्मा की आवाज आई तो रवि तो उसकी बुआ ने पीछे से आवाज लगाया कि रवि इस भिखारी को बोलो कि ये चला जाए, क्योंकि क्या कर रहा है वो? ही हैज बीन कमिंग हियर फॉर एवरी डे। ये यहाँ पर रोज ही आ जाता है, हर पिछले हफ्ते से ये यहाँ पर रोज आ रहा है। अब इसे अपना दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। ये किसने कहा? दादी माँ ने टापी से कहा। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quiet at home. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take his little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. अब मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया, उसके पीछे पीछे चलती। जब तक वो गए तब तक वो भिखारी घर के अंदर बगीचे में आ चुका था और नीम के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा चुका था। उसने अपना ऊपर वाला कपड़ा जो है नीचे बिछा दिया और बैठने की तैयारी करने लगा कि कब दान या भिक्षा जो आएगी। और इतने में ही कौन आ गया? रवि आ गया और उसने गुस्से से स्टर्नली मतलब गुस्से से उसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। मेरी दादी ने कहा है कि अब तुम दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together through their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. तो उस beggar ने अपनी आंखें खोली, भिखारी ने अपनी आंखें खोली और बच्चों को एक एक करके देखने लगा और उसने कहा कि मैं तो समझता था कि इस घर की औरतें बहुत दयालु हैं और उन्होंने ही मेरे शरीर और आत्मा को दोनों को जिंदा रखा हुआ है, मिलाकर रखा हुआ है। मुझे नहीं पता था वो मुझे कहेंगी कि यहाँ से चले जाओ। तो फिर उसने दुखी होकर आवाज लगाई, क्या? अम्मा, अम्मा। और उसका मुंह से उसके आधे ब्राउन टीथ मतलब अदरक के दांत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो शायद पान चबाता था। रवि, tell him there is nothing left in the kitchen for Rukumani and he is not to come again. Tell him that. She sounded fatter. इतने में रवि की मदर ने, जिसका नाम रुकुमनी है, उसने क्या कहा कि किचन में कुछ भी नहीं है, रसोई में अब कुछ भी नहीं है। और उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत फेडअप हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और रवि, तुम इनसे कहो कि यहाँ से चला जाए। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and shied. और अब रवि को रिपीट करने की
जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी माँ ने इतनी जोर से कहा था कि उसे अपने आप ही सुनाई दे गया। तो अब वो वहां से भिखारी वहां से उठकर जाने की तैयारी करने लगा। आई विल गो, ही सेड वेरीली। I will go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. मैं चला जाता हूँ। उसने जल्दी जल्दी कहा, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो इस पेड़ के नीचे, क्योंकि सन बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है और जो सड़क की तारकोल है वो भी क्या हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। उसने पैर उठाकर दिखाया कि देखो मेरे पैरों में किस तरह से बड़े बड़े छाले पड़ चुके हैं। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? उसके छाले देखकर मृदु का दिल पिघला और उसने कहा, मुझे लगता है कि इसके पास पैसे हैं नहीं चप्पल खरीदने के लिए। उसने धीरे से मीना और रवि को कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना चप्पल पेयर पड़ा है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. और मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत छोटा साइज है और उसके पैरों में फिट नहीं आएगा। यही हाल मृदु और मीना का भी है। तो the beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब वो भिखारी उठकर खड़ा हो गया, अपनी धोती को टाइट किया, कपड़ा झाड़ा और उसने घर से रास्ते की तरफ देखा, क्योंकि सड़क उस साइड गर्म से जल रही थी। He need something on his feet, Meena said. Her big eyes feeling it's not fair. अब उसकी ये हालत देखकर, उसके छाले देखकर मीना के आंखों में पानी भर आया और कहती ये सही नहीं है। Said Ravi, I am thinking about it, blubbering. It's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो उसने मीना को चुप कराया और कहा कि मैं सोच रहा हूँ ये सही नहीं है, अभी अगर ये धूप में गया तो इसके पैर जो है जल जाएंगे, इसे एक जोड़ी चप्पल की जरूरत है। चलो देखते हैं घर में कुछ मिलता है या नहीं। उसने मृदु और मीना को धक्का दिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसे ही उन्होंने बरामदा में पैर रखा तो मृदु को जो सुबह उसने चप्पल देखे थे उसे वही चप्पल वहां पड़े हुए देखे और उसने रवि से पूछा ये किसकी है? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि मुड़ा और देखा तो उसे वो गंदे से टूटे हुए चप्पल दिखाई दिए। बस उसने क्या कहा कि ये सही साइज है और उसने फट से उसे उठा लिया और मृदु और मीना उसके पीछे गार्डन की तरफ आ गई। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. Here, उसने रवि ने कहा ये लो, इन्हें पहनो और यहाँ से गायब हो जाओ और कभी वापस मत आना। अब वो भिखारी ने उन चप्पलों की तरफ देखा और जल्दी जल्दी अपना टॉवल जो अपने कंधे पर रखा और फटाफट उसमें अपने पैर डाले और बच्चों को ब्लेसिंग दुआएं देता हुआ वहां से गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब क्या हुआ? म्यूजिक टीचर बाहर आए और उन्होंने उन तीनों बच्चों को बड़े गंदे तरीके से देखा कि उनको वो बच्चे अच्छे नहीं लगे। उन्होंने उनको बड़े अजीब तरीके से देखा जो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठकर कंचे खेल रहे थे और फिर वो अपनी चप्पल बरामदा में ढूंढने लगे। Lali, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here.
लगाई। जब चप्पल नहीं मिली तो उन्होंने आवाज लगाई लाली। तो थोड़ी देर बाद लाली जल्दी से उनके पास आई तो उन्होंने पूछा क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? मैंने उसे यही उतारे थे। रवि, मृदु and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप देख रहे थे कि म्यूजिक मास्टर जो है वो चप्पल को हर जगह ढूंढ रहे थे। रेलिंग के ऊपर, गमलों के पीछे उन्होंने हर जगह देखा और उन्होंने कहा कि मेरी चप्पल बिल्कुल नई थी, मैंने कल ही उन्हें कहाँ से लिए थे? माउंट रोड से खरीदा था। जब बाजार का नाम होगा तो वहाँ से खरीदे थे और वो पता है कितनी महंगी थी? वो एक पूरे महीने की फीस के बराबर थी। So Lali went to tell her mother. Rukomani appeared looking harassed with party following her. तो साथ के साथ लाली कहाँ गई? अपनी मदर को बताने गई और रुकुमनी वहाँ पर आ गई और वो भी परेशान दिख रही थी और उसके साथ साथ दादी माँ भी आ गई। Where would they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door during party. तो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, और ये सोचना भी बहुत खराब, सोचकर भी बहुत खराब लग रहा है कि कोई उन्हें चुरा कर ले गया होगा। ये हो सकता है कोई वेंडर, क्योंकि जो सब्जी बेचने वाले वगैरह आते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। ये किसने कहा? ये दादी माँ ने कहा। Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another snake-tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on her feet. She tried to tell herself. अब रुकुमणि ने क्या देखा कि तीनों बच्चे रवि, मृदु और मीना कहाँ बैठे? पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ ज़्यादा ही शांत है। तो उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने गुस्से में थोड़ा सा अपने गोएं वी शेप में करके उनसे पूछा। तो रुकुमणि की ऐसी आवाज़ सुनकर मृदु डर गई कि अब उसे लगा कि अब मैं क्या करूं कि अगर उन्हें पता चल गया कि उस गरीब भिखारी के पैरों में छाले पड़ गए थे और हमने उसे चप्पल दे दी है। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing, he had such balls on his feet. अब उसने सच उगल दिया, डर के मारे, छोटी थी, डर के मारे उसने उगल दिया कि रुकुमणि कि यहाँ पर एक भिखारी था जिसके पैरों में क्या थे? छाले थे। So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to the old beggar who turns up here. तो अब उसको सारी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस भिखारी को दे दिए। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन पार्टी, और दादी माँ ने भी उसमें ऐड ऑन किया, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिड यू टेल मी अबाउट करना who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अब कौन बोला? रवि बोल पड़ा कि अम्मा तुमने ये नहीं बताया था कि करना महाभारत का कर्म है जो उसे अपने सोने के इयररिंग्स, कान की बालियां दे दी थी, वो कितना अच्छा और दयालु था। Silly, snapped Rukumani. Karna did not give away other people's things. He only gave away his own. तो रुकुमणि ने अपने बेटे को डांटा, चुप करो, कर्ण ने अपनी चीज दी थी, ना कि उसने किसी और की चीज उठा के दे दी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed rashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? पर मेरी चप्पल तो उसे आती ही नहीं, तो अगर मेरी चप्पल उसे आ जाती तो क्या आप बुरा मानती? रवि said Rukumani, very angry now, go inside this room. अब रुकुमणि उसकी माँ ने, रवि की मदर ने कहा कि रवि वो बहुत गुस्से में थी, अभी के अभी कहाँ जाओ? अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out Goku's mama's hardly worn new chappals. This should fit you. Sir, please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music teacher's eyes lit up. अब वो जल्दी से अंदर गई और गोकू मामा के
हार्डली बहुत, मतलब कभी कभी उन्होंने पहने होंगे, नए चप्पल थे, वो उठाकर किसको दे दिए, म्यूजिक मास्टर को दे दिए और कहा कि सर इसे आप पहन लीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा बेटा बहुत शरारती है, ये कहकर उन्होंने वो चप्पल किसको दे दी, म्यूजिक मास्टर को दे दी। The music master's eyes lit up. He put them and tried not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for others. What to do? और उन्होंने अपनी खुशी को छुपाते हुए वो चप्पल पहन ली और कहने लगे कि आजकल के बच्चे किसी बड़ों का बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, क्या कर सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। बोलते ये एक हनुमान का क्या है, बच्चा है या हनुमान का रूप है, इसे तो भगवान राम ही बचा सकते हैं ऐसे शरारती बच्चे को। Rukuma's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood still and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब जितना भी हो बच्चा, कितना भी शरारती हो, माँ को दूसरों के मुंह से उसकी बुराई अच्छी नहीं लगती। तो राजा मास्टर जी ने उसे हनुमान जी से कंपेयर किया तो उसकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सीधा दरवाजे पर जाकर खड़ी होगी और क्या इसका मतलब था कि अब आप यहाँ से चलते बनो। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Ridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God, your Goku's mama doesn't wear this chappal to work." तो अब उन्होंने कहा, मृदु को बुलाया, मृदु चलो अंदर चलो, टिफिन खा लो कुछ, पता नहीं तुम बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलते रहते हैं या तुम ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा इन चप्पल को अपने काम पर पहनकर नहीं गए। As she walked toward the kitchen with Ritu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him that I gave his chappals to the music man? अब जैसे वो किचन में पहुंची, उसने हंसना शुरू किया कि तुम्हारे मामा घर आते ही अपने जूते मोजे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और सीधा क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। अब वो जब वापस आएंगे शाम को तो मैं उनसे क्या कहूँगी, अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने उनके चप्पल किसको दे दिए, म्यूजिक मास्टर को दे दिए। बाय वसंता सूर्या। थैंक्स।